did you get 98? How did you get 98? Not popular? So many congratulations to Mariam Zareen. May Allah bless you beta for wonderful work. Can we take from here? Which is already 12 and studying engineering BTech from Reva. Check mom. Please come this side. The next student is Mohammed Sami. They are giving the Congratulations Aisha. Soon be congratulations. So we have teachers, we have lawyers, we have doctors. But the next we have Asfiya Taj. अभी तुम साथ में चला बोले हैं Asfiya Taj. I have so about 87. इसको चला इसको चला किसी इन्विटेशन All the best. Next we have MBBS from Abbas Amri. Abbas again 92.83% in 12th and 95% in 10th. Marks are just an indicator, but hard work is required. Thank you. I will not read the marks. Marks are there for everybody. Next we have Mehak, who scored 99% in the PUC. Sure. Salim Ahmed, Dayan Sir, College of Engineering. Sania Anwar, doing BAMS. Thank you very much, Sania, for coming. And when you spoke here, you were really speaking from the heart. May Allah bless you to be a great doctor. Sir, IAS officer. IAS officer. Are you an IAS aspirant? thank you. Then we have got Amrit is here, 91%. Sadia Ayman. What did you do? He wants to be a startup founder. Startup. You want to say money? Thank you. Then we have Shah. Kundan Chandra. Please big round of applause. So we are giving this tag with dua. May Almighty bless you with success in this world and hereafter. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार. इसका तर्जुमा अंग्रेजी में. ओके, इससे हम यहाँ ही कामयाबी काफी नहीं है. राइट? नूरैन सबा BSc BA. Congratulations. Let's call the Lord. So in Danish we also make sure that students are doing law, are supported, are pushed, but are one.
Are you joining the national school? Huh? You must join. What is the percentage you got? Next, Sarika. (92 and 93). Mohammed Taha. Mashallah, Rana is 90. आज का प्रोग्राम जो है हम दानिश के स्कॉलरशिप इस बार 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए और अमाउंट हाँ यहाँ भी देखो बोल रहे हैं तो हाँ 250 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए एंड टोटल अमाउंट जो है 70 lakhs। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर we'll be giving ₹1 crore of scholarship from Danish and scholarship from next year. And I have taken my granddaughter Aisha Nayab as the secretary because you know we may have to be prepared for tomorrow and in future she'll be taking care of it inshallah. Of all my charities she'll take care of it. बसमिनिस्वा अलग है but वहाँ भी mostly मेरा contribution रहता है. The members collect about 50 like that and I spend almost 2 crores. तो there also she is going to be the secretary. आप लोगों में कुछ ऐसा ये करके ऐसे भी हैं थोड़े तो we can consider about it. हाँ या अल्लाह ताला सिर्फ 2.5% ज़कात है। अगर तुम्हारी कमाई जो है 100 करोड़ हुई तो ये कितनी ज़कात काटना मालूम तुम 2.5 crores तो वो हिसाब से नहीं हो सकता। आई ट्राई टू गिव मोर, थोड़ा ज़कात का होता है थोड़ा दूसरा भी होता है लाइक दैट आई डिवाइडेड। अच्छा ऐसा वक्त है सिर्फ लड़की लड़का नहीं सोचना, लड़कों को भी तालीम चाहिए और लड़कियों को भी। अमीन के पास वो सेंसस है जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं लड़के कम पढ़ रहे हैं। फादर्स मदर्स आर मोर एजुकेटेड दैन द फादर्स, ही गेव इन द चार्ट and it gives a very clear picture. तो उसमें जो है we decided whoever gets good marks, boy or girl, we will not differentiate. ये क्योंकि लड़के को पढ़ाने की कोशिश करते हैं माँ बाप, लड़कियों को थोड़ा पीछे ढकल देते हैं। तो we try to consider their marks and their capability and then give the zakat, give the scholarship, and the whole amount is not zakat. बारे में देखिए जो ये बिल्कुल नमाज रोज़ा सिखा देते हैं, थोड़े सूर्य अलहम के वो सिखा देते हैं। जब बच्चे ये पढ़ते हैं तो उनको दीनी तालीम का भी शऊर आना चाहिए। इवन दे कैन लर्न कुरान एंड इट्स मीनिंग फ्रॉम इंग्लिश ऑल्सो, वहाँ वो भी सीख सकते हैं। उसमें जो है उनको अवेयरनेस आता है। ये ज़रूरी नहीं कि अरबी ही अरबी में तो पढ़ना ज़रूरी है, उर्दू के माने वगैरह मीनिंग यू कैन लर्न फ्रॉम इंग्लिश मीनिंग का भी कुरान शरीफ है। इससे ये बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते हैं रख लेते हैं क्या लिखा है, अल्लाह क्या चाहता है, इसमें क्या हिदायतें हैं, ये सब कैसा पता चलेगा जब तक हम उसके माने इंग्लिश में या उर्दू में नहीं समझते। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा दीनी तालीम जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसके माने दीन के बारे में जाने। और हाँ, कितने पैगंबर वगैरह गुजरे हैं, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री सीरत के बारे में जाने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जाना बहुत ज़रूरी है। हमारी हम को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है दलित से भी कम है, उनका जो परसेंटेज है एजुकेशन में उससे भी आई बिहाइंड। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। हमारी तरक्की का मेन जो है पढ़ के सिर्फ जॉब करना नहीं है, तुम बिजनेस भी कर सकते हैं, यू विल हैव ए ब्रॉडर विजन। तो इस हिसाब से ज़रूरी है कि हर बच्चा हो बच्ची हो दोनों को भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात, जब हम एक लड़की को एजुकेट करते हैं, आई फील दैट when you educate a boy you educate an individual, when you educate a girl you educate the whole family.
तो माँ का पढ़ना, लड़की का पढ़ना भी उतना ही ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने फैमिली बच्चों को पढ़ाएगी, नसीहत करेगी। बाप जो है कमाने में, दूसरे चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। माँ को ज़रूरी होता है कि वो देखभाल करें, इल्म की तरफ ध्यान दें। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि नानी ने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो मुझे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि कि आई विल बी द सेक्रेटरी और उनकी मैं मदद करूँगी। आई हैव वेरी बिग शूज़ टू फिल, बट इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि वो मुझे हेल्प करे, और जैसे हमारी नानी, हमारे नाना और हमारी पूरी फैमिली जो चैरिटी करती है, तो मैं उसके बरकरार रखूँ, एंड आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह। मेरी मैसेज यही है यूथ को कि आप पढ़े, दिल लगा के पढ़े, एंड अल्लाह से दुआ कीजिए, हर कहीं ना कहीं से ज़रिया निकल जाएगा फाइनेंशियल का इंशाल्लाह। और नानी है, हम हैं, विल हेल्प यू, जस्ट स्टडी, वर्क हार्ड। एंड पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आपके बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें प्यार दे, उन्हें इनकरेज करें, ख़ासतौर पे जो लड़की बच्चियाँ हैं उनके लिए। डोंट स्टॉप द एजुकेशन, इफ़ दे रियली वांट टू स्टडी एंड दे रियली वांट टू डू वेल एंड दे हैव द ग्रेड्स, देन प्लीज़ एनकरेज देम सो दैट दे डू वेल, दे आर आवर फ्यूचर। 61 बच्चों को दिया गया है और हर बच्चे को 35,000 स्कॉलरशिप दी गई है। कुल अमाउंट है 21,35,000। इंजीनियरिंग 47 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, हर बच्चे को 25,000, कुल मिलाकर 11,75,000। और फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन जो यूनानी आयुर्वेदा के बच्चे हैं वो 57 बच्चे हैं, हर बच्चे को 30,000, 17,10,000 रुपए। फिर 2 साल पहले हमारे प्रेसिडेंट मैम ने बीएड के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की। उनके बीएड के बच्चे वैसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो टीचर्स बने, और अगर हमें टीचर्स बनाना है हमारे होम में तो बीएड के लिए स्कॉलरशिप देना बहुत ज़रूरी है। तो इसको सामने रखते हुए 40 स्टूडेंट्स को इस बार सिलेक्ट किया गया है फॉर बीएड, और इसका टोटल अमाउंट है 6 लाख। फार्मेसी के 13 बच्चे, इनका 20,000 पर स्टूडेंट। लॉ के 5 बच्चे हैं, 20,000 पर स्टूडेंट। वेटरनरी साइंस जो एक 100% जॉब ओरिएंटेड गारंटीड कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब गारंटीड कोर्स है, उसके लिए 5 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, और एग्रीकल्चर के 7 बच्चों को लिया गया है। तो दानिश ट्रस्ट जो है हमेशा यही चाहती है कि बस मेरिट वाले बच्चे भी नहीं बल्कि दूसरे कैटेगरी के बच्चे अभी जो आप बता रहे हैं। तो हमारे पास इस साल टोटल जो है बॉयज का परसेंटेज है 44.26 और गर्ल्स का 55.74%। बेंगलोर से सिर्फ 20% बच्चे चुने गए हैं, 80% बच्चे बेंगलोर से बाहर चुने गए हैं, और उन पूरों को स्कॉलरशिप जो है ऑनलाइन के जरिए डायरेक्ट अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस मरतबा जो बच्चे चुने गए हैं उसमें 73% जो है बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, मतलब बहुत ही कम पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, इनके पास बीपीएल कार्ड है, पुअर लोग हैं। और इस मरतबा जो है 10 ऐसे बच्चे चुने गए हैं जो ऑर्फन्स हैं, उनके वालिदैन वालिद या वालिदा नहीं है। फिर ज़कात एलिजिबल, क्योंकि हमारे फॉर्म में आता है कंडीशन कि आप ज़कात एलिजिबल हैं, वो जो है 76.6%। तो रियासत के सारे डिस्ट्रिक्ट से जो है बच्चों ने अप्लाई किया है, कुल मिलाकर 811 बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें हमने 250 बच्चों को सिलेक्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन आकर हैं वो बेंगलोर से, गुलबर्गा से, बीदर से, रायचूर, रामनगर, यहाँ से जो है फॉर्म्स आ गए। फिलहाल रेवा यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और मेरे सेकेंड पी में 100% है और 10th में 98.6। तो मैंने एक मंथ पहले दानिश स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो मुझे आफ्टर अ मंथ मैं आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म मुझे रिस्पांस मिला कि आप सब सेलेक्ट हुए हैं। तो इस संडे हमें बुलाया गया था दानिश की तरफ से, बहुत अच्छा फंक्शन रखा गया था, और हमें इस फंक्शन अटेंड करने हमारे माँ बाप भी हमारे साथ आए थे, तो बहुत प्राउड हुए। तो हमें देख के बहुत खुश हुए कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमें दानिश की तरफ से चेक भी मिला। तो वो लोग बहुत खुश हुए कि हमारे बच्चे उनकी पढ़ाई के लिए खुद का खर्चा वो। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? तो मैं फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो मैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इस फील्ड को आगे स्टडी करके इसमें रिसर्च करूँगा। दानिश के अराउंड दानिश फाउंडेशन का कि वो गरीब और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन, उनको बहुत मदद कर रहे हैं, और आगे वो ऐसे ही करते रहें और बहुत सारे गरीब बच्चों को मदद करें। मौका दिया मेरे बच्चे को, इतने लोगों ने मेरे बच्चे को सेलेक्ट किया।
तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उनको और अदा करे और उनके कलामी को बढ़ाए। मरियम जरीन है। मैं प्रेजेंटली नित्य मीनाक्षी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में BE कर रही हूँ। मैं देवनहल्ली से आता हूँ। मेरा 10th में परसेंटेज 98.88 है और 12th का 100% मैं निकाली हूँ। एंड आई थैंक दानिश फॉर दिस स्कॉलरशिप। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum warahmatullah. Myself Sadia Ayman. I'm currently pursuing first year MBBS from East Point College of Medical Sciences, and I scored 91% in my 10th and 12th as well. And I'm thankful for Danish Foundation for supporting us to achieve my goals, to help the community to move forward and elaborate all our community towards different fields and everything, and support us to just grow up in our life and just be the best, come the best out of us and help the community as well. What would you like to tell? I would thank them for supporting the community, to uplifting all the Muslim students, so especially the minority people who are in need, and helping them to pursue their dreams and moving forward in life, and then making them independent. मेरा नाम मेहनतन है और मैं BTech पढ़ रही हूँ इन KNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग। और मुझे ऑनलाइन से पता चला कि डैनिश में स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है, इसलिए मैंने अप्लाई किया था। 250 स्टूडेंट्स में 25 स्टूडेंट की सिलेक्ट किया और मैं उसमें से एक हूँ। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया और चाहती हूँ कि वो ऐसे ही दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं। आपने परसेंटेज कितना, कहाँ से कितना? 99% स्कोर किया है सेकेंड ईयर से। और 10 साल भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। दानिश को प्रोवाइड स्कॉलरशिप दूसरे लोग आगे बढ़ के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, सिर्फ स्टडी से ही नहीं, सिर्फ एजुकेशन नहीं, आगे बढ़कर दूसरे लोगों को भी मदद करें।